chemistry department, I will teach you the course which is the Chem 421 or for it is for okay no this is for 301 for botany department. Actually this is same course is taught in zoology department which has the course title physical chemistry 1 and the course code is 421. This is for you botany student. It is 301 physical chemistry 1 and it is 3 credit hour course. Mean there are normally for physical classes it is 2 classes for theory and 1 for practical, but and for online system you have to read 3 classes of theory in this duration. Okay, so firstly we will discuss our course content which we studied in this semester. The first one chapter you can say is the chemical kinetics. Second one is chemical equilibrium, and third one is basic quantum chemistry. I think you have studied about the chemical kinetics and chemical equilibrium in your previous classes like FSE. There is a short chapter of chemical kinetics and chemical equilibrium in it, but the basic quantum chemistry is new for you, maybe new. Some topic of these are new, but in physics you have already studied about the wave particle nature or de Broglie or Heisenberg uncertainty principle. So most of the course is the revision of this materials or you can say these topics. So firstly we will discuss about the chemical kinetics. Firstly there is an introduction of chemical kinetics. Mean what is chemical kinetics, what you study in chemical kinetics, mean what are the rate or what are the mechanism or what are the factor which influence the rate of reaction. All these things are included in chemical kinetics. Then we study the order of reaction, or mean what are order of reactions, or what are rate expression, what are rate law. These are the things we will firstly discuss and study in it. Then we study in detail the zero order reaction, first order reaction, and second order reaction. Second order reaction has two types, or you can say there are two cases for this second order reaction. The first one is the second order reaction with the same and different initial concentrations. The first one is the case with the same initial concentration, and the second one is with the different initial concentration. After that we will discuss about the half-life of a reaction, mean what is a half-life and how we can calculate it, and we read about different techniques from which we determine the rate of reaction or order of reaction. ठीक है कि हम order of reaction को कैसे वेट कर स्टडी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, उसको कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम मेथड देखेंगे इसके अंदर. उसके अलावा नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें मेथड कौन कौन से हो सकते हैं. इंटीग्रेशन मेथड हो सकता है, हाफ लाइफ मेथड हो सकता है, इनिशियल रेट मेथड एंड ग्राफिकल मेथड हो सकता है. फिर उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें रफली आप लोगों को आइडिया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है. तो वो इफेक्ट हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर. और इसके लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन, और वहीं पे हम एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लेंगे. साथ साथ फिर हम कोलिजन थ्योरीज को स्टडी करेंगे. उसके बाद ये कोलिजन थ्योरीज क्या हो सकती हैं, बाई मालिक्यूलर कोलिजन थ्योरी हो सकती है,
या यूनिमोलिकुलर फ्यूजन थ्योरी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आ जाएगी साथ साथ। तो ये तो है हम जो है काइनेटिक्स वाले चैप्टर में करेंगे। इसके अलावा भी काइनेटिक्स में ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, मीन थर्ड ऑर्डर होता है, अपोजिंग रिएक्शंस होते हैं, कंजक्टिव रिएक्शंस होते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, आप लोगों ने जस्ट ये इतने ही करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेन ब्रांच आ रही है केमिस्ट्री की, यहाँ भी कह लेंगे सेकंड चैप्टर आ रहा है, तो वो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिसमें हम जनरल टर्म्स देखेंगे पहले कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट क्या है, मीन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होता है, इक्विलिब्रियम क्या किस पोजीशन पे अटेन हो सकता है। फिर एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इन सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड gas phase. Similarly, extent of reaction and equilibrium constant and the effect of temperature and pressure on the equilibrium constant, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर उसकी कंपोजिशन के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है टेम्परेचर का और प्रेशर का, ठीक है। और जिसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल भी कह रहे होते हैं कि वहाँ उसमें हम कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, वॉल्यूम का या टेम्परेचर का इफेक्ट देखे होते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि अगर इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर दें तो इक्विलिब्रियम किस साइड पर मूव करेगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। इसी तरह हमारे पास है वांट ऑफ इक्वेशन है, इस इफेक्ट को मेजर करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ की जा रही है तो वो चीज़ स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आ रही है, थर्ड जो टॉपिक है या जो मेन चैप्टर है वो है क्वांटम केमिस्ट्री, बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री। तो हम पहले देखेंगे कि क्वांटम केमिस्ट्री क्या है और साथ साथ हमारे पास क्या है कि क्लासिकल क्वांटम केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के क्या डिफेक्ट्स थे या क्या उसकी लिमिटेशन थी वो हम देखेंगे, क्यों हमें जो है वो ज़रूरत पेश आई क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो फिर इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, डीप वेव इक्वेशन, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड उसके बाद हमारे पास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एक, वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। उसके साथ साथ हम क्या है क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लेंगे कि एनर्जी एक लेवल की एनर्जी कितनी है, दूसरे लेवल की एनर्जी कितनी है। जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है। तो अभी हम लोग थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों के प्रैक्टिकल जो है वो जनवरी में जाके होंगे, तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन हर लिक्विड की स्पेसिफिक सरफेस टेंशन होती है, हर लिक्विड की एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड को लेके उसकी ये वैल्यूज मेजर कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हम करते क्या हैं कि पहले एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसकी विस्कोसिटी मेजर कर ली या उसकी सरफेस टेंशन मेजर कर ली, फिर उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं डिफरेंट कंपोजिशन के सोल्यूशन बना, ठीक है। और वहाँ से अननोन सोल्यूशन को भी निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई अननोन सोल्यूशन है, कोई अननोन लिक्विड है, तो फिर हम उसकी सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे, ये सरफेस या विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि हम आप लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी और एफएससी लेवल के अंदर, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने देखा होगा कि कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है लो हो जाता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स या लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वो उसकी डिटर्मिनेशन है कि उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मेथड जो है आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब हमने वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करके
हम जो है एक्सपेरिमेंटली इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन बाय सोलेबिलिटी मेथड, तो हम सोलेबिलिटी मेथड्स को यूज़ करके हीट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मीन कोई भी अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहाँ पर कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि क्या है कि जब भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसके थ्रू जो है वो हीट रिलीज हो रही होती है। तो ये जो हीट रिलीज होती है इसको हम डिटरमिन कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो ये तो था आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल पोर्शन या प्रैक्टिकल पोर्शन। इसके लिए आप डिफरेंट बुक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉरेन ऑथर्स की यूज़ करनी है तो आप एटकिन की यूज़ कर लें, लेटलर की बुक यूज़ कर सकते हैं, नेट से आपको मिल जाएंगी। ब्रेन की MG बैरो की बुक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल राइटर्स की बुक्स हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी, या जहाँ से मैं अपना को नोट्स दूँगी तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर को या फर्स्ट ब्रांच को हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या थी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि क्या है। इसमें हम किस किस चीज़ को डील कर रहे होते हैं और इसमें किस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with the rate and mechanism of a chemical reaction is called chemical kinetics। हमारे पास क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम किस चीज़ को डील करें, हम किस चीज़ को स्टडी करें, रेट ऑफ रिएक्शन को और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। हम मेनली दो चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज़ क्या है हमारे पास रेट, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि रेट क्या है। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज अ स्पीड विद व्हिच अ रिएक्शन प्रोसीड। कि रेट वो है हमारे पास जिससे हम क्या कर रहे हैं कि हम ये स्टडी कर लेते हैं कि रेट की क्या स्पीड है, क्या रिएक्शन स्लो है, रिएक्शन तेज है, ठीक है, रिएक्शन कोई इंटरमीडिएट है, स्लो और फास्ट होने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। हम रिएक्टर्स ले रहे होते हैं तो हमें पता है, आपको पता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद हमारे पास क्या रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है और प्रोडक्ट बनती है। तो हम ये देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने रिएक्टर जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, वो सारी चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। मतलब क्या है कि रेट का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कितनी स्पीड है किसी भी रेट की, हम वो स्टडी कर रहे हैं रेट के अंदर। In other words, the rate of chemical reaction is the change in concentration of any reactant or product per unit time। कि रेट क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है प्रोसीड आउट हो रहा है उसमें कंसंट्रेशन जो हमने ली है रिएक्टेंट की, चाहे वो 1 ग्राम दिया, 2 ग्राम दिया या 10 ग्राम दिया, तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। The mechanism of a chemical reaction is the detailed sequence of single elementary step which lead from reactant to product। तो मैकेनिज्म हमारे पास क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रहा है तो वो एक स्टेप में कंप्लीट होता है या एक स्टेप से ज़्यादा में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर एक स्टेप में कंप्लीट होगा तो उसको तो हम क्या कहते हैं, सिंपल रिएक्शन कह देते हैं। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा रिएक्शन के अंदर वो प्रोसीड आउट हो तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन उसमें भी 2 स्टेप है या 3 स्टेप है, लेकिन हर एक को हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट्री स्टेप है, कि ये रिएक्शन 3 एलिमेंट्री स्टेप पे मुश्तमिल है, ये रिएक्शन 2 एलिमेंट्री स्टेप पे मुश्तमिल है, या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म के अंदर। तो हमने क्या कहा कि केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट को डील कर रहे हैं या फिर हम मैकेनिज्म को डील कर रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि डिटेल सीक्वेंस ऑफ
स्टेप्स कि कितने स्टेप के अंदर कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड आउट होगा। अब अगर सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप है, तो फिर तो वो उसकी नेट इक्वेशन वही होगी जो सिंगल स्टेप। लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मीन कि जिसमें 2 स्टेप हैं या 3 स्टेप हैं हमारे पास, तो वहां पे क्या हो सकता है कि जो हम नेट रिएक्शन लिखते हैं वो सारी इक्वेशन नहीं लिखते, फिर पहले उनको प्लस कर लेके चेक कर लेते हैं कि वो कोई रिएक्टेंट बन रहा था, वो कंज्यूम हो गया तो वो कैंसिल आउट होगा। मीन रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट यूज हुआ पर तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन उसकी अमाउंट खत्म होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो नहीं आएगा। ओवरऑल में जो है हमारे पास जो उसकी नेट इक्वेशन बनेगी वो आएगी, और वहां से हम उसका रेट डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, a net equation shows none of these steps। in net equation में ये elementary step को नहीं हम लिखते बल्कि उसका जो overall result होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, but rather shows the net change which is the overall result of all the steps in the mechanism। के overall जो result है हम उसको लिख रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, much of our knowledge of reaction mechanism stems from study of reaction rate। कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या स्टडी कर रहे होते हैं, रिएक्शन का रेट कैसा है, कितने स्टेप हैं, एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, पीएच ऑफ द मीडियम एंड लाइट इंटेंसिटी। फिर हमारे पास क्या है मैकेनिज्म में हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि रेट क्या है और साथ साथ कौन कौन से फैक्टर इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में 3 मेन चीजें आ गई जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। फर्स्टली क्या है रेट, सेकंड क्या है मैकेनिज्म, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, पीएच है या लाइट इंटेंसिटी है, उनका क्या इफेक्ट होता है रेट के ऊपर, वो सारे के सारा हम लोग क्या कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि कुछ मैंने आपको कहा कि रेट क्या होता है कि रेट जो है वो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, वो स्पीड जो हमें बताती है कोई रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, उसमें कंसंट्रेशन का क्या चेंज आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं इन 3 क्लासेस। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो स्टूडेंट अभी आप अपना माइक बंद करें, जो आपको इश्यूज होंगे तो वो मैं आपको जो है ना लेक्चर के बाद में बताती हूँ। आप अभी अपना माइक बंद करें ताकि मैं लेक्चर दूँ, पूरी क्लास इस तरह डिस्टर्ब होगी है। तो हम एक्चुअली मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो चुकी है, हेल्ड हो चुकी है सिर्फ कंटेंट्स के ऊपर ना, आगे हमें चैप्टर शो नहीं हो रहा। आपको कंटेंट शो नहीं हो रहे, चैप्टर शो नहीं हो रहा, जस्ट कंटेंट्स के ऊपर हेल्ड होगी वो जोन से ना, आगे कंटेंट आगे चैप्टर नहीं शो हो रहा जैसे कल शो हो रहा था ना। अब स्टूडेंट्स आप लोग को आ रही है? यस मैम, आप शो हो रहा है। ओके यस मैम, अब ठीक है। ओके, अब अपनी जो है ना माइक्रोफोन को जो है वो म्यूट कर ले। मैं इसका मतलब है मैं आप लोगों को जो है ना ये दोबारा थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ अगर किसी के पास ये नहीं आ रही। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि हम डील कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, कि हमारे पास रेट क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है वो किस स्पीड से प्रोसीड आउट हो रहा है, मीन उसमें जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है चाहे वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो वो उसमें क्या चेंज आ रहा होता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या जाती है रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कोई रिएक्शन कितने स्टेप में प्रोसीड आउट हो रहा है, कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है या 2 स्टेप रिएक्शन है या 3 स्टेप रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अंदर आ जाती हैं। अब
हमारे पास क्या है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, द branch of physical chemistry which deals with the rate and mechanism of chemical reaction is called chemical kinetics. ये chemical kinetics में हम rate of reaction को deal कर रहे हैं और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, mechanism of reaction को study कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि rate क्या है। rate of reaction is speed with which the reaction proceed, कि किस स्पीड से reaction proceed कर रहा है। In other words, the rate of chemical reaction is the change in concentration of any of the reactant or product per unit time। हम टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी प्रोडक्ट जो है वो बनी है या 1 मिनट के अंदर कितने रिएक्टेंट कंज्यूम होना है। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आ जाएगी। और मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म of a chemical reaction is the detailed sequence of single elementary step which lead from reactant to product। कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी स्टेप यूटिलाइज हो रहे हैं, चाहे वो सिंगल है या वो 3-4 स्टेप हैं, वो सारी की सारी जो है हमारे पास सारी की सारी जो है उस स्टेप को हम मैकेनिज्म में स्टडी कर रहे होते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है जब हम लिखते हैं तो वो हर स्टेप को नहीं लिख रहे होते, बल्कि उसके अंदर जो नेट रिएक्शन होता है हम उसको लिख रहे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल a net equation shows none of these steps but rather show the net change which is the overall result of the all steps in the mechanism. Much of our knowledge of reaction mechanism stem from the studies of the reaction rate। कि reaction mechanism में हम क्या कर रहे हैं, reaction rate को study कर रहे हैं और rate के ऊपर कौन कौन से factor जो हैं वो affect कर रहे होते हैं, उनको study कर रहे होते हैं। how they are influenced by different factors। अच्छा, ये फैक्टर कौन से हो सकते हैं, ये फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर चेंज करने से किसी रिएक्शन के क्या चेंजेस आते हैं, वो अदर वो इंक्रीज होता है उसका रेट या डिक्रीज होता है, या इसी तरह प्रेशर को चेंज करने से, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ता है, या पीएच ऑफ मीडियम चेंज कर दें उससे क्या पड़ेगा, या लाइट इंटेंसिटी को हम चेंज करें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि फोकस केमिकल काइनेटिक्स का किन 3 चीज़ों में है कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है और साथ साथ थर्ड जो है हमारे पास कि उन फैक्टर्स को स्टडी करना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर कहा कि रेट जो है हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है कि जहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है। इसी बेसिस पे हम क्या है केमिकल रिएक्शन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 3 क्लासेस क्या हो सकती हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शन एंड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। जैसा कि आपको इनके नेम से ही पता चल गया कि स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है कि बड़ा स्लो होगा, ईयर्स लगा देगा, डेज लगा देगा, ठीक है, अब उसको कंप्लीट करने में। मॉडरेट्स जो नॉर्मल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस क्या है, जो कि एट वंस हो जाए, एट वंस हो जाए, एक ही दफ़ा एक लम्हे के अंदर हो जाए, या जिसे हम कहते हैं कि नैनो सेकंड के अंदर कोई रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रहा है, वो हमारे पास क्या आ जाता है कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, किसी भी इंस्टेंट पे हो गया। इंस्टेंटेनियस का वर्ड था, इंस्टेंट पे आया कि बहुत जल्दी से एक ही लम्हे के अंदर कोई रिएक्शन प्रोसीड आउट हो जाए, तो वो रिएक्शंस क्या होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो इन फास्ट रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कौन से हैं। दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड एट वंस, ठीक है। नेम से जाहिर था कि ये जो है बड़े फास्ट रिएक्शन है, किसी भी इंस्टेंट पे हो रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड एट वंस, के एट वंस ही हो गए, एक ही लम्हे के अंदर। तो ये कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं, आपको पता है कि आयनिक रिएक्शन जो हैं बड़े फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जो कोवलेंट कंपाउंड के बने होते हैं उनके रिएक्शंस। अब क्यों होता है, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर तो बॉन्ड बने होते हैं, लेकिन आयनिक रिएक्शंस के अंदर जो आयंस हैं, जो हमारे पास आयनिक सॉल्यूशन हैं, उनमें आयंस जो हैं सेपरेट रह रहे हैं, ठीक है। मीन ये जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट नेगेटिव आयन होगा, सोडियम क्या है पॉजिटिव आयन, क्लोराइड क्या होता है नेगेटिव आयन के अंदर होता है, ठीक है।
तो क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं आपस में बड़ी इजीली कंबाइन हो जाते हैं, इनके दरम्यान में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो क्या है जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बड़े फास्ट होते हैं, वो एट वंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये फास्ट रिएक्शन है या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं। दीज आर द reaction which are completed at once. For example, the reaction between silver nitrate and sodium chloride to form the white precipitate of silver chloride. अब हम देखते हैं कि मॉडरेट रिएक्शंस कौन से हैं, यानी कि जो नॉर्मल स्पीड पे हो रहे हैं। These are the reactions which proceed at moderate speed, कि ये दरमियानी सी स्पीड के अंदर हो रहे होते हैं, ना तो बहुत स्लो है ना ही बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ देयर वेट इज पॉसिबल, कि इनकी जो हम इजीली जो हम नॉर्मल टेक्निक यूज कर रहे होते हैं लैब में, तो उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको इजीली मेजर कर सकते हैं। देखें कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है तो उसके लिए तो हमें कोई ऐसी टेक्निक चाहिए कि जो उसको जल्दी से स्टडी कर ले, ठीक है, या फास्ट टेक्निक या उसके लिए एडवांस टेक्निक यूज की जा सकती है। लेकिन जो मॉडरेट रिएक्शंस हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनका रेट नॉर्मल सा है, तो हम जो नॉर्मल टेक्निक्स हैं उनके थ्रू इसको स्टडी कर सकते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देख लें हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर एंड रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन ऑफ द गैसियस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शंस हमने आगे पढ़ने भी हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी जा रही है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के एस्टर जो होते हैं, एक्चुअली आपने ऑर्गेनिक में इसका रिएक्शन भी देखा हुआ है, लेकिन आगे भी आ जाएगा कि एस्टर्स हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस कर ली जाए, तो ये हमारे पास क्या है कि अल्कोहल वगैरह बना रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि मॉडरेट रिएक्शन में आ जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड है गैशियस फॉर्म में, देखिए ये जी का मतलब क्या है कि गैशियस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट बनी है वो भी गैशियस फॉर्म में, इसकी डीकम्पोजिशन इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो जल्दी ऐसे हो जाती है, नॉर्मल रेट पे हो जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या स्लो रिएक्शंस होते हैं, दीज आर दी रिएक्शंस विच टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो होता है उसको कंप्लीट होने के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। हमारे पास क्या है कि एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस हैं, कि जैसे आपको पता है आयरन की रस्टिंग या आयरन को जो जंग लगता है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही जो लोहे को मॉइस्चर में रखोगे तो उसी टाइम उसको जंग लग जाएगा, उसको जंग लगने में टाइम लगता है, ठीक है, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, कुछ अरसे के बाद उसको जंग लगेगा। इसी तरह फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कि वो भी एकदम से नहीं हो जाती। आपको पता है बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो उसको फिक्स कर रहे होते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करें, कुछ भी इसी तरह कन्वर्ट करें। तो ये है हमारे पास क्या है कि स्लो रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स को देखें, स्पीड के लिहाज से देख लें हमारे पास के केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करें। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं, दूसरे हमारे पास क्या है, मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, ठीक है। इसी तरह समटाइम आप लोगों ने वर्ड कहीं पढ़ोगे होमोजीनियस काइनेटिक्स एंड हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स। होमो का वर्ड आपको पता है कि सेम के लिए यूज होता है, और हेट्रो के लिए क्या यूज होता है, डिफरेंट का वर्ड यूज होता है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर रिएक्टेंट्स ऑल दी रिएक्टेंट्स सेम फेज के अंदर हों, जैसे ये हमारे पास क्या है कि ये सेम फेज के, अगर हम इसका रिवर्सिबल रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है दोनों गैसियस फेज में है, तो ये क्या है हमारे पास होमोजीनियस रिएक्शन आएगा, होमोजीनियस काइनेटिक्स कह सकते हैं। अगर एक गैस होता दूसरा सॉलिड होता, या एक गैस होता लिक्विड होता, या लिक्विड होता और सॉलिड होता, तो वो हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता, ठीक है। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन हमारे पास, और आई थिंक कि इसके 40 मिनट की लिमिट थी, तो ये 40 मिनट की लिमिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, और कल जो है इसको आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे, और
आई होप कि आप लोगों को जो है ना कुछ यहाँ पे विजिबल हुआ होगा या कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही होगी, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए और आप लोगों को समझ आएगी। मैम अगर आपके पास स्लाइड्स हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी हैं तो फिर सेंड कर सकती हैं आप।